गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और आज दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है ग्रैंड ओबराय में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ग्लोबल एजुकेशंस की पूरी टीम, पूरी फैकल्टीज यहाँ मौजूद है हमारे साथ। और आज जो प्रोग्राम है हायर एजुकेशंस, ग्लोबल एजुकेशंस को लेकर के किस तरीके से जो है अपने करियर्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को आप किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तमाम चीज़ों के लेकर जो है एक छोटा सा सेमिनार रखा गया है। और इन्हीं तमाम करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के जो बातें होंगी, तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट। और हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनसे भी बातें करने की कोशिश करेगी द लोकल। वेलकम टू इंडिया सर। Thank you. सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट एडू इज डूइंग? Gedu is a corporation from UK, established in 2010, that is trying to change basically for young people the outcome of their lives by education. So changing life by education. So we are trying to find modus ways of improving their opportunities, improving opportunities of young people to go to different universities around the world, wherever they can get a good education at a reasonable price, and maybe change their future by getting good jobs, good money, and prospering through the either in Europe or America or in Asia. Doesn't really matter. So we started from UK institutions, UK campuses. We now have 9 campuses in UK and from London all the way, and then we start developing through the campuses in Europe, Malta, Dubai. We are just acquired now a nice small private university in France, in Paris. So trying to give more and more options to our We have seen students. that GEDU is working in 12 countries. Yeah, it's working. It's working in countries all the way from Australia to the Far East, and we are looking into more and more options, And next to our higher education thing, we also have an English path, which is basically an English school. So we are trying wherever we move with a new campus and establish a new campus, also to move an English path with us, so that we can, basically get students to learn English language and follow us, because all the programs that we have are in English language. So till now, how many students have registered with you? I mean, at this point, it's about 35, 40,000 students all around the world, and hopefully that number will be growing every year. As per global research, $3,400 billion industry is a global market. So Okay, I didn't know that number, but I know it's a big market. some researchers are saying that in 2027 it's going to be grow up to 4,700 billion industry. So are you getting are you looking for big opportunities or big pictures? For us, to be honest, yes, of course, this is also a business, but the major point is to improve the life of these kids, give them the opportunity. That's kind of a bigger satisfaction. If you see a group of 20, 30, 50 students coming from, disadvantaged families, or with a country that, and coming to, let's say in Europe, they come to Paris, they study, they suddenly become the citizen of the world, and they can move from there to America or to Europe or to Asia, Dubai, wherever they want, and be successful in what they are doing. So we are giving them the tool to be successful in life. That's for me much better satisfaction than, of course, being part of that, whatever you said, billions That numbers. dollars. Yeah. That number. Yeah. So there are lots of others companies who are providing higher educations. Why students will choose GEDU? The few reasons, number one is we are trying to give them a top-class education. The second, we are trying to do that at an affordable price, also rewarding all different skills and previous, effort of these students. So we are giving scholarships if they were a good student in a previous education. We are giving a scholarship if they had any kind of a public engagement in their community. They have some volunteer work, anything like that. So we're trying to encourage them to be also a good citizen, not only a student. And then another thing is that we are trying to make like a circle of companies around the world where these students can choose where they want to go and get that international exposure, meet people from all other cultures and all other backgrounds and religions and all of that, and become really a citizen of the world. So I think combination of these three factors is definitely putting us apart from a number of other institutions. I don't say there are no others who do the similar thing, but not too many. थैंक यू सर। क्या अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स को? देखिए गेडू की तरफ से जैसे नेशनली अभी मैं
B2B चैनल हेड कर रहा हूँ इंडिया में, हम नोएडा में बेस्ड हैं। स्टूडेंट्स को जो मिलता है आउटरीच, अगर आप देखेंगे तो अंडर द सेम एम्ब्रेला, एज हमारे ब्रानिस्लाव ने बोला कि नॉट ओनली दुबई माल्टा बट ऑल्सो यूरोप में 4 डेस्टिनेशंस, तो अंडर सेम अम्ब्रेला आपको एक नहीं 8 कैंपसेस अलग अलग जगह स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है। बेस्ट पार्ट इज़ इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए जो अफोर्डेबिलिटी है, द फी स्ट्रक्चर्स हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी फ़ी स्ट्रक्चर की वजह से बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है कई दफ़ा हायर एजुकेशन, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एजुकेशन तो उसमें बच्चे के ना ही सिर्फ फीस बट उसके रिक्विजिट मार्क्स, उसका साल में कितना स्टडी गैप हुआ है, जस्टिफाइड एंड जेन्युइन गैप भी होता है, तो वो स्टूडेंट्स को कई दफ़ा वीज़ा देने में प्रॉब्लम हो जाती है। यूके हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऐसी कंट्रीज़ में। बट केडू के साथ स्टूडेंट जो जेन्युइनली, जैसे उन्होंने कहा कि जो फैमिलीज़ ऐसे होती हैं कि जिनको एफिशिएंटली कभी कोई चीज़ नहीं करने को मिल पाई या मौका नहीं मिल पाया, तो आज वो अपना करियर फिर उस चीज़ के लिए बढ़ा के कर सकते हैं। आज में अगर 25 साल का हो जाएगा हमारा लड़का, तो ऑब्वियसली बात है उसको 5 साल के स्टडी गैप के लिए कनाडा या यूके एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, बट गेडू में उसको वो सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो माल्टा हो, फ्रांस हो, बर्लिन हो, जर्मनी हो या स्पेन हो, और यूएसए भी। हमारे जितने कैंपसेस हैं, एक्सीलेंट प्रोग्राम्स जो हमारे वर्ल्ड के डिमांड में है, चाहे वो बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड टीचिंग है दुबई में, माल्टा में है, फ्रांस में हम बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम करा रहे हैं। फ्रांस में तो बहुत अच्छी चीज़ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में ये है कि पोस्टल पीजी लेवल का कोई कोर्स करते हैं तो आपको अप टू 5 इयर्स ऑफ वर्क परमिट जो है पोस्टली वर्क वीज़ा मिल जाता है, फ्रेंच गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट के जो कोलैबोरेशन हुए हैं उसके तहत। साथ में जब बच्चा रहता है तो ऑब्वियसली वो एक से ज़्यादा साल का अगर कोई प्रोग्राम करता है तो विद इन हमारे कैंपसेस वो रोटेट कर सकता है, तो वर्ल्ड जो जर्मनी में पढ़ रहा है वो फ्रांस जा सकता है, नेक्स्ट ईयर वो स्पेन में जा सकता है। सिमिलरली दुबई से वो 2 साल करके वो हमारे किसी भी कैंपस में गैडू के थर्ड अंदर ईयर जो भी कर कैंपस जितने भी कैंपसेस हैं वो रोटेट, पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारे बैचलर प्रोग्राम्स में तो खास तौर से, बिकॉज बैचलर्स 3 साल का होता है, तो उसमें 1 साल बच्चा दुबई पढ़े, 1 साल बच्चा माल्टा पढ़े, 1 साल जर्मनी। सो बहुत तरीके से उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। और फीस जो है खासतौर से जैसे माल्टा गवर्नमेंट है 70% आपको टैक्स क्रेडिट वापस देती है ट्यूशन फीस का, यानी कि गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप स्टे बैक करो कोर्स के बाद, क्योंकि हम आपको 70% ऑफ द ट्यूशन फीस रिफंड कर रहे हैं टैक्स क्रेडिट्स में। 7,000 यूरो की फ़ीस है मास्टर्स की, 6,000 यूरो पर ईयर है बैचलर्स की। सेम प्रोग्राम आप यूके में अगर देते हो तो 14,000 15,000 पाउंड्स की फ़ीस है। अच्छा, ये डिफरेंसेस रहता है अब आप कहाँ 15-16 लाख रुपए एक साल का देते हैं यूके में उसी यूनिवर्सिटी के लिए, और सेम यूनिवर्सिटी का कोर्स आपको माल्टा में पढ़ाया जा रहा है हमारे कैंपस में विद 6,000 यूरोज ईयर, यानी करीबन 5 लाख रुपए, 5 से 6 लाख 5-5.5 लाख रुपए पर आपका पूरा 3 साल का कोर्स जो है यानी 16-16.5 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाता है। सो मैं तो ये कहूँगा प्लीज़, हमारा रीजनल है ऑफिस जो है इंडिया में नोएडा में है, हमारे सारे जो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट मैनेजर्स हैं और रीजनल मैनेजर्स हैं दे आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। कलकत्ता में हमारा लोकल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सौरदीप चाटराज है, एंड जो रीजनल मैनेजर हैं ही इज़ बेस्ड इन मध्य प्रदेश, वो राहुल पांडे हैं। मैं अभिषेक दत्त हूँ, मैं नोएडा बैठता हूँ। हमारे पास करीबन 300 स्टाफ है जो बैक एंड एप्लीकेशंस और टीम को हैंडल करते हैं, तो वो नोएडा में बेस्ड है। सर आज देखा कि बहुत सारे एजेंट्स बेसिकली इस प्रोग्राम में ज्वाइंट हुए, और एजेंट्स को क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं सर? देखिए इन लोगों का रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि स्टूडेंट रिक्रूटमेंट बहुत एक जिसको कहते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। जिस तरह से आप लीगल एडवाइज़र के पास जाते हैं, मेडिकल एडवाइज़र के पास जाते हैं, उसी तरह स्टूडेंट रिक्रूटमेंट के लिए ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स का बहुत बड़ा काम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे का करियर बना सकता है और बिगाड़ सकता है। एग्जैक्टली। अगर वो सही ऑप्शन नहीं देगा किसी स्टूडेंट को, तो बच्चे की लाइफ डेंजर में हो सकती है। किस जगह बच्चे को जाना चाहिए, किस कंट्री में जाना चाहिए, क्या कोर्स पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आई मीन अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके घर में कोई गाइड करने वाला नहीं है तो यू नीड सम गाइडेंस। आपको वो गाइड कौन करेगा? वो ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स करेंगे। और उनका यहाँ आने का आज मतलब ये था कि उनको भी जब कोई चीज़ के बारे में नहीं पता, हमारी भी कोई नई चीज़ अगर कोई मार्केट में आती है, कोई भी चीज़ होती है, तो आपको उसके लिए अवेयरनेस करना ज़रूरी होता है। तो आज का प्रोग्राम जो था हमारा अवेयरनेस कैंपेन था, टू नो अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, और हम क्या बेटर कर सकते हैं, फीडबैक क्या है। किसी को अगर पता ही नहीं है कि दुबई क्यों जाना है, एग्जैक्टली।
सब सोचते हैं दुबई में लेबर क्लास है, ऐसा नहीं है। लेबर क्लास ने काम करके आज 40 साल में दुबई को इस मोहताज पे खड़ा किया है कि वाइट कॉलर जॉब्स आज दुबई में सबसे ज़्यादा है, टैक्स फ्री जोन है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। वर्ल्ड में 60+ ब्रांच इंटरनेशनल कैंपसेस के जो हैं वो आज दुबई में, सिंगापुर में भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें बताने की होती है, ये अवेयरनेस कैंपेन आज किया गया था एजेंसी मीट के थ्रू, और काफ़ी लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चा एक्चुअली में ढूंढता है पर ऑप्शन नहीं मिलते। तो आई थिंक आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जितने नए पार्टनर्स और पुराने पार्टनर्स हैं वो हमसे जुड़े हैं, और इकट्ठा हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे टू स्प्रेड ग्लोबल एजुकेशन थ्रू आउट द ग्लोब। सो वन लास्ट क्वेश्चन, एजेंट्स किस तरीके से आपके साथ जुड़े, और अगर स्टूडेंट्स को आपके साथ जुड़ना रहेगा तो वो कैसे आएगा? तो एजेंसीज़ का रोल ये होता है कि जैसे अगर किसी ने बैचलर्स करने जाना है या मास्टर्स करने जाना है, तो 12th क्लास में जो रिक्विजिट होती है प्रोग्राम और कंट्री के हिसाब से एजेंसीज़ उनको फ़िल्टर करते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं, उसके बाद एजेंसीज़ अप्लाई करती हैं। सो ऑटोमेटिकली वो एक हमारा चेन ऑफ बिजनेस ऐसा ही होता है, वेयर इन स्टूडेंट को जो बेस्ट ऑप्शन होगा या इंटरव्यू लिया जाएगा एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के तहत उनको, जो है कोई अगर कुछ कंट्रीज़ में जैसे माल्टा है तो वहाँ पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की, पीटी होम एडिशन या पीटी नॉर्मल एडिशन, ड्यूलिंगो, टॉफल। कई जगह हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश अगर मीडियम में अगर स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की गई है तो उसके बेस पे एडमिशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ही कंसल्टेंट्स जो हैं हेल्प करते हैं हमें इंस्टीट्यूशंस को और स्टूडेंट्स को मिलाने में। थैंक यू सर वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्लेजर। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपील भी कर सकते हैं लोगों को कि आगे ज़्यादा से सो ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। हमारी जो वेबसाइट है gedu.global, उस पे आप जाएं और विज़िट करें। हमारे जितने कैंपसेस हैं, हमारे जितनी कोर्सेज़ हैं आप लोगों के लिए, हमारे जो लोकल कनेक्ट है सौरदीप चाटराज, नीचे नंबर आ रहा है, और आपका जो रीजनल मैनेजर है राहुल पांडे, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो अवेलेबल, अभिषेक दत्त मेरा नाम है। आप ऑलवेज प्लीज़, इट्स एन अपील, गो फॉर द बेस्ट एजुकेशन एंड अफोर्डेबल एजुकेशन।